براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خدا قدوس جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا توریت، زبور، انجیل میں اور اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اسے اسی طرح سے پکارا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے اس سال کا یہ وقت ہمیں عطا فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے پورا ہو سکے۔ یہ اس سال کا 2017 کا پہلا شو ہے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جو بعد میں بھی دیکھیں گے، نئے سال کی بہت بہت مبارکباد، اور خداوند کرے کہ ہم سب اس سال میں اس کی کامل اور پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف شنوا ہوں بلکہ عمل کرنے کا عہد کر لیں، تاکہ اس زمین پر اس کی ان برکات کا تجربہ کر سکیں جو ہم اس کے کلام میں پڑھتے ہیں، اس کے کلام سے پریچ بھی شاید کرتے ہیں، ٹیچ بھی کرتے ہیں، شاید دیواروں پر بھی لکھ کر لگا رکھا ہے، لیکن ان کا عملی اطلاق کہاں ہے؟ جب ہم دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو گزرے ماضی کو دیکھتے ہوئے آج کے دن تک اگر دیکھیں تو دنیا زیادہ اندوناک، خوفناک اور خونخوار اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور یہ رویے جو پروان چڑھ رہے ہیں، ان سے نسل انسانی کو جتنا خطرہ نسل انسانی سے ہے، انسان کو انسان سے جتنا خطرہ ہے اس وقت، ڈر ہے، خوف ہے۔ شاید گزری نسلوں نے بھی ایسے حالات دیکھے ہوں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو دنیا کی تصویر ہے، یہ ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پکار رہی ہے کہ تمہاری سمت کس طرف ہے۔ اور ہم آج کل کی جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں وہ جو لوگ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، لیکن سال کے آغاز میں آج میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا ظاہر پر نہیں، جو نظر آتا ہے اس پر نہیں، بلکہ وہ باطن پر نگاہ کرتا ہے، اندر سے انسان کیسا ہے۔ نئے سال میں ہم دیکھیں جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ مجھے جانچ، مجھے پرکھ۔ وہ دوسروں کی بات نہیں کرتا کہ دوسروں کو جانچ، دوسروں کو پرکھ، اپنی بات کرتا ہے۔ اور آج سال کے شروع میں کاش یہ ہماری دعا بن جائے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، اے خدا مجھے جانچ اور مجھے پرکھ اپنے کلام کے مطابق کہ مجھ میں کہیں برائی، بدی، شرارت، لالچ، تعصب اور وہ باتیں جو تیرے کلام کے خلاف ہیں کہیں موجود تو نہیں ہیں۔ اگر وہ موجود ہیں تو زبانی دعوے تو ہوں گے، لیکن اصل روح سے ہم خالی رہیں گے۔ پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ جو کرسمس پر ہوا، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 42 اور اب تو شاید 42 سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو زہریلی شراب پینے سے لقمہ اجل ہو گئے۔ اس کے بعد گوجرانوالہ میں، پھر پشاور میں کچھ لوگ زہریلی شراب پینے سے موت کا لقمہ ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے
वो एक क्लिप भी देखेंगे। लेकिन इसके साथ एक और अफसोसनाक वाकया हुआ कि थाईलैंड में जो मसीही असाइलम सीकर्स हैं उनमें से तकरीबन 45 लोगों को जो वहां अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने गिरफ्तार किया। इस पर, इन दोनों मौज़ूआत पर जो वाकयात अफसोसनाक हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन आइए पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कहता है। मेरे साथ मेहमान भी होंगे, उनसे भी मुतारफ करवाऊंगा। पहले ये क्लिप देखते हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि जहरीली शराब ने मजीद 7 जिंदगियां निगल ली। टोबा टेक-सिंग में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद अब 42 हो गई है। 34 अफराद की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि जहरीली शराब ने मजीद 7 जिंदगियां निगल ली हैं। टोबा टेक-सिंग में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 42 हो गई है। 34 अफराद की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं मियां अब्दुल जब्बार की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक-सिंग में जहरीली शराब ने कई घर उजाड़ दिए। मुबारकाबाद मोहल्ले की फिजा सोगवार, बासियों की आंखें पुरनम। जहरीली शराब पीने से मरने वाले 34 अफराद की तदफीन उनके आबाई इलाकों में कर दी गई है। मोहल्ला मुबारकाबाद की फिजा सोगवार है। मरने वालों के घरों में गम ने डेरे डाल रखे हैं। जहरीली शराब पीने से मुतासिर होने वाले अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक-सिंग और अलाइट अस्पताल फैसलाबाद में जेरे इलाज हैं। जराये के मुताबिक तमाम अफराद ने जायद मिकदार में शराब पी, जिसके बाइस अमवात हुई। वाक़े का मुकदमा सरकार की मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। आपने ये खबर सुनी है। 42 खानदानों के अफराद लुकमा अजल बन गए। बच्चे यतीम हुए, खवातीन बेवा हुई। बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खो दिया। गोजरावाला में, फिर पेशावर में जहरीली शराब ने हमसे हमारे बहुत से अजीज छीन लिए। इकबाल ने कहा था, है सारी खलकत कुंबा खुदा का। आदम की औलाद, लेकिन जुबान की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, ज़मीन की बुनियाद पर, अकीदों की बुनियाद पर, डिनोमिनेशंस की बुनियाद पर, फिरकों की बुनियाद पर बटे हुए लोग। और क्रिसमस के मौका पर अफसोसनाक पहलू यह था कि इनमें मरने वाले जो थे सभी इंसान थे, पहली बात, लेकिन ज्यादातर का ताल्लुक मसीही तबका से था, मसीही मजहब से था, दीन कह लीजिए। क्रिसमस का मौका है, ईद वलादत अल मसीह, खुशियां मनाने वाले गम मातम का शिकार हो गए। मेरे साथ 2 मेहमान होंगे, बात करेंगे जिम्मेदार कौन है, कमी कहां पर है, सदेबाब क्या हो सकता है, और शायद इस मौजू को हम आने वाले हफ्ते में भी जारी रखेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ हैं। दोनों को खुदा ने बहुत बरकत दे रखी है और दोनों नहायत मेहरबान और अमली मदद की जब ज़रूरत पड़ती है अपनी हैसियत, अपने दोस्तों की हैसियत, जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। पहले मुतारफ करवाना चाहता हूं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मसीही कम्युनिटी लीडर हैं, मुस्लिम हलके में भी जाने जाते हैं, जनाबे मोहतरम
तारक रहमत साहब। तारक भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ऑनर दिया ताकि मैं इस शो में आ सकूं। मैं मसीह यीशु के नाम में तमाम व्यूवर्स को, जितने लोग भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको मैं मसीह यीशु में सलाम कहता हूं। बिल्कुल ठीक हूं डॉक्टर साहब। मैं तारक साहब, बहुत हौलनाक, अफसोसनाक, गमनाक वाकया, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपसे दरखास्त है, आप ये बताइए, आप बाखबर शख्स हैं, कमी कहाँ पर है? जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? कौन जिम्मेदारी लेगा भी? कमी कहाँ है? जिम्मेदार कौन है? और फिर हल पर भी बात करेंगे। तो पहले आपसे ये सवाल है, कमी कहाँ है? ये तसलसल से जारी है, कौन जिम्मेदार है? थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जिम्मेदार कौन है। सबसे पहली बात है, जो मुआशरा है वो इसका जिम्मेदार है। उसके बाद रियासत इसकी जिम्मेदार है। उसके बाद वालिदैन और जितने मजहबी और सियासी लीडर हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। कैसे? मुआशरा इस तरह से है कि जो मुआशरा है वो लोगों के साथ बनता है, और जो लोग इकट्ठे मिलकर एज अ कम्युनिटी की शक्ल में रहते हैं उसे सोसाइटी कहते हैं। अब जो लोग जिस जगह पर भी रहते हैं और जहां पर भी ये हादसात पेश आते हैं, वहां के लोग इन तमाम बातों को जानते हैं और इसके बारे में बाखबर होते हैं। वो ही जिम्मेदार हैं। अगर वो वहां पर रहते हैं तो उन्होंने इसकी रोकथाम पहले क्यों नहीं की? और रियासत की जिम्मेदारी ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं। यहाँ पर पहली जो बात आपने की है उस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप के साथ इस पर बात करें। आपने कहा मुआशरा जिम्मेदार है। जी जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शराब बनाने वाले भी वहाँ पर हैं, बेचने वाले भी वहाँ पर हैं, उसको सप्लाई करने वाले और लोगों को तक पहुँचाने वाले सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई शख्स इस धंधे को बंद करने के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल इसको और ज़्यादा एलाबोरेट कर दिया कि ये जितने लोग भी हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ये नासूर मुआशरे में है और इसको ख़त्म करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, और ये मुआशरा उसका जिम्मेदार है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए मस्जिदों में भी जाते हैं, चर्चिज़ में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सब कहते हैं ये हराम है, लेकिन इसको रोकने के लिए मुआशरा जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुआशरा इसका जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात आपने की रियासत की, तो मैं चाहूँगा इस पर भी आप इजहार ख्याल फरमाइए। जी सर, रियासत जो है, एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर जो हैं, ये इन लोगों को भी ये इल्म है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबको ये इल्म है कि पाकिस्तान में सबकी आमदन इन तमाम ऐसे कामों से जो है ना वाबस्ता है। पैसा जनरेट होता है, आप कह रहे हैं कि पैसा जनरेट होता है। जी जी जी, आमदन जो है वो जनरेट होती है, जिसकी वजह से रियासत के बहुत से जो लोग हैं वो इसके साथ मुंसलिक होते हैं, और इस वजह से जो है हम उन्हीं को जिम्मेदार करार देंगे। हम उन्हीं को जिम्मेदार करार देंगे ताकि अगर वो रियासत में उनको खुदा ने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बिठाया है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिठाया है, तो वो वहाँ पर इसके जिम्मेदार बनकर इसका काम करें, और ताकि इस काम को ख़त्म किया जा सके। आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं कवानीन की बालादस्ती के, कवानीन को लागू करवाने के, और वो इसमें नाकाम हैं, ये बात आप करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो नाकाम है इस काम के लिए, जबकि कानून उनके पास है, सोर्सेज उनके पास हैं, स्ट्रेंथ उनके पास है, ताकत उनके पास है, तो फिर भी ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो जिम्मेदार हैं। तो आपसे अब मैं ये पूछता हूं, थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल है, क्या फिर ऐसे ऑफिसर्स को उन कुर्सियों पर रहने का हक है? क्या कहेंगे? चुभता सवाल है, जरा अगर आप कहना चाहें कहिए, नहीं कहना चाहेंगे ना कहें। नहीं, जरूर जी,
उन अफसरान को जो उन कुर्सियों पर बैठे हैं, जो सिर्फ अपनी आमदन के लिए या रुपए पैसे के लिए ऐसी बातों को दरगुजर कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितने लोग भी लुकमा अजल बने हैं वो बराबर के उनके जिम्मेदार हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये कातिल हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि कवानीन उनके साथ हैं और इख्तियारात उनके पास हैं, लेकिन वो कातिल हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इन लोगों को कत्ल होने दिया है और ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और मेहमान हैं, फिर अगले जो नुकात इन्होंने बयान फरमाए हैं उस पर भी बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, दर्द दिल भी रखते हैं और दिलेरी से बात करना भी जानते हैं। बहुत ही मोहतरम, इज्जत और एहतराम से मुतारफ़ करवाना चाह रहा हूँ जनाब मोहतरम भाई पीटर साहब। पीटर भाई कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्र है खुदा का, ठीक है सब कुछ। पीटर भाई, अफसोसनाक वाक़या, तारक साहब ने जिम्मेदारान की तरफ निशानदही की। आप समझते हैं कि कुछ और बातें भी हैं जो इसमें शामिल की जा सकती हैं जो उन्होंने की, इसके अलावा कोई बात और आप समझते हैं? चूँकि आपका एक वसी तजर्बा है, हर शख्स मामलात को मुख्तलिफ एंगल से देखता है, अपनी नज़र से देखता है, तो आप इन क्या समझते हैं? कौन जिम्मेदार है? कमी कहाँ पर है? कोई बात आप समझते हो जो रह गई है वो ऐड करना चाहें? तारक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को उजागर किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, देखें अगर हम हकीकत की तरफ देखें तो पाकिस्तान बने अभी 70 साल हो गए हैं और हम इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं। लॉ इन ऑर्डर का सिचुएशन है, माइंडसेट का सिचुएशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन सबसे मैं समझता हूँ कि बड़ी बात जो प्रॉब्लम है वो हमारे अपने लोगों के अंदर है, अपनी कम्युनिटी के अंदर है, लीडरान के अंदर है, जो एजुकेट नहीं कर पा रहे अपने लोगों को और लोगों में ये शऊर पैदा नहीं हो रहा कि क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। पीटर साहब बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि गलती कम्युनिटी के अंदर है, कमी कम्युनिटी के अंदर है, लीडर जो हैं वो एजुकेट नहीं कर रहे। तो अब मैं आपको अगर बताऊं, बहुत से लोगों को ये बात चुभेगी तीर की तरह। हर महल्ले में मिनिस्ट्रियां हैं, वहाँ पर हर महल्ले में हर रोज़ इबादत होती हैं, हदिये उठाए जाते हैं, बड़े नारे लगाए जाते हैं। तो एजुकेशन की जब आप बात कर रहे हैं वहाँ पर तो मौजूद हैं, आपको मैं दावत देता हूँ, आप तो जाते रहते हैं, देखें इंडिया पाकिस्तान में हर घर में मिनिस्ट्री वहाँ पर बनी हुई है, तो कलाम तो सुनाया जा रहा है। क्या कहेंगे फिर इस बारे में? मास्टर जी, बात यह है कि बात करने से नहीं होती, अमली जामा पहनाने की जरूरत है। जैसे आपने अपने पहले ओपनिंग अल्फाज में कहा है कि जब तक किसी चीज को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा उसको सीरियसली सोचा नहीं जाएगा। लेकिन हमने चर्चेज में, मिनिस्ट्रीज में बात तो कर दी, लेकिन उन सब मिनिस्टर्स को, उन सब पास्टर्स को, उन सब लीडर्स को पता है कि ये हो रहा है। कितने लोगों ने जाके इन लोगों से बात की है कि भाई ये गलत है, इससे आपको प्रॉब्लम होगा, हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम होगा, आपका जानी नुकसान होगा। मुझे बताएं कितने लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया? सुन रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में जो मसीही बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, पीटर साहब ने ये बात वाजे कर दी है। कौन है? सब असातिज़ा हैं, समझाने वाला और वहां पर जाकर उनके साथ वक्त गुजारने वाला। और अगर बात समझ नहीं आ रही तो फिर बेहतर तौर से समझाने वाला। बिल्कुल। माए नी मैं किथे ढूंढा, एक सूफी शायर ने ये मेरा ख्याल है सूफी शोरा में से एक कलाम है ये, एक माए नी मैं किथे ढूंढा, किथे लब्बा एहो जे लीडर, कहां ढूंढूं ऐसे लीडर। तो पीटर साहब, लीडर्स को क्या कहना चाहेंगे फिर? कम्युनिटी को एजुकेट, ये इबादत हो रही है, क्या कहेंगे लीडर्स को? जी, कि जो लीडर का मतलब लीडरी करना नहीं है, खिदमत करना है। फिर कहिए ये जुमला, फिर कहिए इबादत है। पीटर साहब, पाकिस्तान और इंडिया में बैठे हुए तमाम जो रहनुमा हैं, ये जुमला फिर कहिए, ये बाइबल की आयत है, दोबारा कहिए कि जो लीडर है वो कौन है?
وہ خدمتگار ہے، خادم ہے، اور اس کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے، لیزی نہیں کرنی چاہیے. اور خدمت کے یہ عمرے میں آتا ہے کہ اگر میرا کوئی بہن بھائی ڈوب رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سمندر میں ہی ڈوبے تو ہم نے اس کو پکڑنا ہے. جب وہ بری علتوں میں پھنس جاتا ہے، برے حالات میں پھنس جاتا ہے، تو اس وقت اس کو سہارا دینا جو ہے، یہ ہم لوگوں کا جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان کا کام ہے کہ اپنے لوگوں میں بیٹھے اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اور جب تک اس کا کوئی ریزولوشن نہیں نکلتا اس کا پیچھا نہ چھوڑیں. جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے تو اوپر سے گزر جاتی ہیں یہ ساری باتیں. جب تک ان کو ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے ان کے ان تمام چیزوں کے مضر اثرات سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، بتایا نہیں جائے گا کہ دیکھیں اب وہ جانے والے چلے گئے، اس کے علاوہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے گھر اجڑ گئے. پیٹر صاحب بہت شکریہ، کون پرسان حال ہوگا. بہت شکریہ. یہ جو نقطہ ہے یہ مجھے اٹھانا ہے اور میں اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن یہاں پر دونوں مہمان میرے ساتھ ہیں. میرے ایک مسلمان دوست نے فیس بک پر لکھا تھا کہ مسیحوں کے لیے شراب جو ہے وہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں جی جائز ہے، تو میں آپ تعلیم کے جو نکات ہیں یہاں پر میں وہ بیان کر دوں مسیحوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ مسیحت میں جو شراب یا میں کے بارے میں تعلیم ہے وہ میں مختصراً بیان کروں گا، اور اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو پھر شاید میں اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں. تو پہلے دیکھتے ہیں میں اور شراب کے بارے میں جو عبرانی، چونکہ اردو بائبل ترجمہ ہے عبرانی زبان کا، تو عبرانی میں دیکھ لیتے ہیں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں کے لیے، اور پھر ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے. ابھی ہم نے جو اسائلم سیکرز ہیں ان پر بھی بات کرنی ہے. میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور مسیحوں کو بتانا چاہتا ہوں میں اور شراب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یین. یہ ایک غیر مستعمل مادہ، یعنی مطلب ہے بلبلے اٹھنا. عربی میں اس کو سیاہ انگور، اور یہ 127 مرتبہ بائبل میں آیا ہے. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو لوگ شراب کہتے ہیں وہ جان بھی لیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں. اس کے بعد ہے شکار. اگر میں پروننسیشن بہتر نہ کر سکوں تو معافی چاہتا ہوں پہلے ہی. عربی میں اس کو کھجور کی شراب کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب نشہ آور چیز بھی ہے. جہاں بھی لفظ شراب یا میں آتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو شکار لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد نشہ آور چیز وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. کھجور کی شراب بھی اس سے ہو سکتا ہے، اور یہ 23 مرتبہ آیا ہے. ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی میں وہ ہے خمیر یا خمر. اس کے بھی معنی ہیں ابلنا یا جھاگ اٹھنا. یہ 8 مرتبہ آیا ہے. پھر ایک اور جو لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے تیروش. اس کا مطلب ہے قبضے میں لینا، اور استثناء اگر باب 1 اور 21 آیت پڑھیں تو جو شراب ہے یا میں ہے نشے والی وہ انسان کے دماغ کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے. اب میں کے استعمال کے جو اثرات ہیں، شراب کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں، غلط استعمال، درست استعمال، یہ انسان کی آزاد مرضی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. تو جو غلط استعمال ہے اس کے اثرات جو ہیں کیا ہوتے ہیں؟ یہ بے حیائی کا سبب بنتی ہے. پیدائش کی کتاب میں زنا اور بدکاری کو فروغ دیتی ہے. پیدائش کی کتاب میں کاہن اور خادم الدین کو نشہ سے منع کیا گیا تھا. یہ احبار کی کتاب، حزقیل کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. اور جو نذیر ہوتے تھے، خدا کے لیے مخصوص لوگ ہوتے تھے، ان کو نشہ سے منع کیا گیا تھا گنتی کی کتاب میں بھی، اور کاہن اور خادموں کو منع کیا گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں پطرس کا خط تو وہاں پر تمام مسیحوں کو کہا گیا ہے کہ تم ایک مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو. تو جب یہ سٹیٹس ہے تمام مسیحوں کا، اور یہاں پر کاہن اور خادم الدین جو تھے ان کو منع کیا گیا تھا، تو یہ بہت اہم بات ہے جو آج مسیحوں کو سمجھنی چاہیے، اور جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھ لیں. نئے عہد نامہ میں جو عام لفظ میں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے اوئنوس، گلیوکوس، سیکھرا، ایمپلیوس، اور اس سے مراد شراب یا نشے والی چیز، اور آخری لفظ کا معنی ہے انگور کا درخت. اب اس کا جو اچھا اور برا استعمال ہے، آزاد مرضی خدا نے دے رکھی ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کال کرے گا تو تفصیلاً اس کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جو تعارف ہے اس حوالے سے. اب اچھا اور برا استعمال مسیحوں کو
तालीम दी गई है, परहेज का मशवरा दिया गया है। और अगर आप रोमियो बाब 14 देखें 21वीं आयत, तो यहां पर 21 आयत में लिखा है, यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए ना मैं पिए और ना कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। और 20वीं आयत में है, खाने की खातर पीना भी लगा लीजिए, खुदा के काम को ना बिगाड़। तो नशा करने वाला जो भी शख्स है वो खुदा के काम को बिगाड़ने वाला यहां पर कहा गया है। हमारे साथ एक कॉलर है, मैं कॉल बाद में लूंगा, पहले मैं इसको खत्म कर लूं। ये फिर जो शराब नोशी है, शराब नोशी करना गैर कौमों का तर्ज जिंदगी है, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हम पहले वक्त गुजार चुके वही बहुत है। पहला पत्रस का खत है, मसीहो जो वक्त तुमने गुजार लिया है नशा में, शराब में, मसीह खुदावंद को नजात दहिंदा कबूल करने से पहले वो काफ़ी है। अब तुम्हारे लिए ये चीज़ मना फरमा दी गई है। और फिर आगे लिखा हुआ है, तमाम मसीही जो मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं उनको आगाही और ख़बरदारी दी गई है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े। तुम्हारा तर्ज हयात नशाबाजी, मैनोशी नहीं होनी चाहिए। ये तालीम है खुदावंद के कलाम में से। और फिर आगे नसीहत की गई है कि अब करना क्या है। लिखा है इफ्सियों के 5वें बाब में, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह में जिंदगी गुजारना मसीहों का चलन होना चाहिए, ना कि शराब नोशी और नशाबाजी। कलाम खुदा में से ये हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं और उम्मीद करता हूं कि जरूर लोग इस पर निगाह करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा, कहाँ से बात कीजिए? शुक्रिया सर, मसीह यसू में आपकी सलामती हो। जी, बड़ी मेहरबानी, आपकी भी सलामती हो। मैं सर रशीद मसीह हुजरा शाह मकीन तहसील दिपालपुर से। जी रशीद भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा में यसू मसीह का सर। मैं सर सबसे पहले जो तोबा टैक्सिंग में वाक़या हुआ है क्रिसमस डे वाले दिन, उस पर बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। जी, इतनी कीमती जानें गई और कितने मसीह घर जो उजड़ गए हैं। हमें इन चीज़ों से परहेजगारी करनी चाहिए क्योंकि कलाम खुदा हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया। हम शराब में मतवाले रहें और हमें खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहिए, क्योंकि ईद विलादत हमें ये नहीं सिखाती कि हम शराब में मगन रहें और अपनी जानों का नुकसान उठाएं, बल्कि खुदावंद के कलाम में मगन होना चाहिए, हमदोस्तैश में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। रशीद साहब, कोई और बात करना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं सर तकरीबन 1 साल मुझे हो गया है, 1 साल जो मुझे तंग किया जा रहा है। मैं पहले भी आपसे कॉलिंग करता रहा हूँ कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ। इधर हॉस्पिटल RHC हुजरा शाह मकीन में मैं 3/5/2007 को हाजिरी दी थी। तकरीबन 10 साल होने वाले, पौने 10। ये आपका हॉस्पिटल का नाम बताइए, क्या है जहाँ पर आप मुलाजिम हैं? मैं सर इधर RHC हुजरा शाह मकीन रूरल हेल्थ सेंटर। ठीक है, मैं अभी ये 2 रहनुमा हमारे साथ हैं तो आपका नंबर भी मैं ले लूँगा। पहले भी हमने दुआ की थी ताकि खुदा करे कि आपका ये मसला हल हो जाए। तो 2 जो अजीज़ हमारे साथ हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मामले में जो कुछ हो सकता है करें, चूँकि ये दोनों हजरात बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत खिदमत कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी जहाँ तक मदद हो सके, जो लोग इस मामले में कर सकते हैं वो आपकी मदद करें। कोई और बात आप रशीद साहब करना चाहेंगे? हाँ जी सर, बच्चे मेरे सर गवर्नमेंट हाई स्कूल हुजरा शाह मकीन में पढ़ते थे, उनको भी तंग किया गया और मैं प्राइवेट पढ़ाने पर उनको मजबूर हो गया हूँ, इतना हद से ज्यादा। ये आपको हरास किया जा रहा है तो वहां पर बहुत शुक्रिया रशीद साहब। पाकिस्तान में इस वक्त जो बैठे हुए मेरे मुसलमान और मसीही बहन भाई हैं, आप ये सुनिए कि ये शख्स दुखों में से गुजर रहा है, ज्यादतियों
की इंतहा कर दी गई है। कोई है जो गैरत और शर्म और एहसास रखता है जो इस मजलूम की मदद कर सके? और मैं अपने दोनों मेहमानों से भी दरख्वास्त करूंगा, आपको नंबर हम दे देंगे, देखिए किस तरह से इनकी मदद हो सकती है। एक और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी सर, डॉक्टर जानिया, मैं नुमान बात कर रहा हूँ और मेरी तरफ से सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। जी शुक्रिया आपको भी। जी सर, मैं बात करना चाहूँगा, आज का मौजू आपने बहुत अच्छा चुना हुआ है और ये आज रिसेंटली आज कंटिहार न्यूज़ पे चल रहा है। सर अगर आप इसकी मैंने जैसे भाई की मैंने बात सुनी लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो सर ये सिचुएशन है कि अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन को देखें, अगर आप मीडिया की रिपोर्टिंग को देखें, तो उसमें तो ये भी आ रहा है कि ये जो शराब जो पी गई है ये पहले उसने बरामद की थी पुलिस ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें मोहतरम नुमान भाई, ये सारी बातें मीडिया पर हैं। आप ये बताइए, आप इनमें से क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, वो बात कीजिए प्लीज। सर हाईलाइट ये है कि हम अपने सिस्टम जो है वो इतना डिरेल हो चुका है कि सर हम ना चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में भी जब पटिशन दायर हुई थी वो क्रिश्चियंस और हिंदुओं की तरफ से हुई थी, बट जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई उसकी पटिशन, तब सुप्रीम कोर्ट के ये अल्फाज है कि वो मसीही लोग तो करना चाहते हैं इसको बंद, लेकिन और भी इसमें बहुत सारे अनासर हैं जो इसको नहीं करना चाहते बंद। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नुमान भाई, आपका नुक्ता ये है कि मसीही नहीं चाहते कि शराब हो, हिंदू नहीं चाहते शराब हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके नाम पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सर रिमार्क्स हैं, लेकिन कुछ अनासर जिनमें मुस्लिम भी हैं और भी वो नहीं चाहते कि ये बंद हो। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं क्रिश्चियन नहीं चाहते तो उन लोगों को क्या मसाइल है, जी बहुत शुक्रिया, उनके दिए हुए परमिट पे क्यों चलते हैं। और दूसरी बात सर, अगर ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हम जब किसी मसीही को या अगर किसी मसीही से बात करते हैं जो शराब पीता है, तो सर वो अगर आगे से उसका क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि आप फिर मेडिसिन जो लेते हैं, खांसी का शरबत पीते हैं, उसमें भी तो ये होता है शराब डाली जाती है, तो वो कैसे हलाल होगी और ये कैसे हराम? ये अभी नुमान भाई क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिए। हाँ नुमान भाई, ये अभी जो मैंने आयात रखी है ना आपके सामने, ये जवाब है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आयात मैंने आप तमाम अहबाब के सामने रखी हैं वो जवाब हैं, और अगर किसी को समझ आ जाए तो वो काफ़ी हैं आयात, और अगर कोई नहीं समझना चाहता तो फिर उसका क्या किया जा सकता है। सो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? सर बहुत थैंक यू और इस मसले को रेज करने का, और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर थे पाकिस्तान से। अब ये जो बातें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, कलाम इसके बारे में क्या कहता है? ज़रूर है कि हम इस पर निगाह करें। पहला करंथियों का ख़त है और बाब 10 है और उसकी 6ठी आयत है। यहाँ पर लिखा है, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरें ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। जो लोग मौत का शिकार हुए, मुसीबतों में चले गए, परेशानियों में चले गए, खुदा से दूर चले गए, उनके लिए है ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरें, सबक इसमें हमारे लिए है ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें। हर वो चीज़ जो खुदा के कलाम से मुतसादम है वो बुरी है जैसा उन्होंने की। हम जो जिंदा हैं हमारे लिए ये असबाक सीखने की बात है। इसके साथ जो दूसरा अहम मौजू वो है मसीही असाइलम सीकर्स। हम इस पर बात जारी रखेंगे, लेकिन तकरीबन 45 लोग पकड़े गए, उनमें से ज़्यादातर अभी अंदर हैं, शायद उनके बच्चे कुछ बाहर हैं। तो जो वहाँ पर सूरत हाल है उसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं वहाँ से, वो सूरत हाल बयान करेंगे। तो आइए जो मसीही असाइलम सीकर्स हैं उनमें से कुछ हैं जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं।
अगर आप नाम बताना चाहें ज़रूर बताएं, नहीं बताना चाहते तो जो सूरत हाल है उससे ज़रूर आगाह कीजिए। जी, हमारे साथ हैं टेलीफोन पर थाईलैंड से, आपको इस शो में खुश आमदीद कहते हैं। आप बताइए अपनी पहले सूरत हाल बताइए, आपके ख़ानदान की क्या सूरत हाल है, उसके बाद दीगर जो लोग हैं उनकी सूरत हाल क्या है। पूरी दुनिया में ये शो देखा जाता है, लोग देखेंगे भी। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। हाँ जी, मैं सबको सलाम कहती हूँ भाई। सलाम। हाँ जी, मेरा नाम रानी है और मुझे 4 साल हो गए हैं थाईलैंड में, और 1 साल हो गया मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा आईडीसी में है, और मैं खुद 4 महीने आईडीसी में रह के आई हूँ। और मेरी 2 बेटियां थी, एक 14 साल की और एक 16 साल की है, और वो दोनों अकेली रहती रही हैं 4 महीने, और उनके पास ना कुछ खाने के लिए था, ना उनको पता था कि कहीं जाना है, ना कुछ आने का पता था। तो इस वजह से वो बहुत रोते होते थे बच्चे मेरे। तो आपका जो शौहर है और बेटा है? हाँ जी, वो मेरा शौहर और मेरा बेटा आईडीसी के अंदर है अभी भी। आपका जो शौहर हैं आपके, वो आपने बताया था शायद बीमार भी हैं, और आपका बेटा भी बीमार है, क्या है उनको बताइए थोड़ा सा। मेरे शौहर के हार्ट की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उनके सर में हर वक्त दर्द रहती है, और शुगर बहुत ज्यादा उनको हाई है। और मेरे बेटे को अंडर लेग में बहुत ज्यादा खारिश 8-10 महीने से खारिश हो रही है, उसके साथ उसका गले हुए हैं चीजें नीचे से टांगे। तो क्या कोई मेडिकल की हेल्प उनको वहाँ मिलती है? नहीं, मैंने आज भी यूएनए वालों को फोन किया, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, और हमें इधर भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। हम 2-3 माँ बेटियां हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम बहुत परेशान है इधर थाईलैंड में। एक बात मुझे बताइएगा, आप उस मुल्क को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए थे? क्या हुआ था, अगर आप बताना चाहें थोड़ा सा तो। क्यों आप आए थे? मैं बताना चाहती हूँ, उधर हमारा अच्छा खासा था, घर बार था, अपनी गाड़ियाँ थी, अपना घर बार था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। 2006 में मेरे हस्बैंड ने ऑफिस बनाया था प्रॉपर्टी का, तो इस वजह से मुस्लिम थे जिनकी साथ ही शॉप थी, उनका भी ऑफिस था प्रॉपर्टी का। तो उन्होंने जेलसी की वजह से एक सौदा किया, और जिधर भी वो सौदा करते थे वो जाके कहते थे ये क्रिश्चियन लोग हैं, इनसे क्यों लेते हो। इस वजह से हमारी काफी देर इनके साथ चलती रही, और हमें कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना। हमारे 10-10 दिन बच्चे नहीं थे स्कूल जाते, और हम लोग बहुत परेशान रहते थे। अभी मैं सोचती हूँ या बताने के मेरे पास लफ्ज नहीं है कि कितनी मुश्किलातें थी, कितना प्रॉब्लम थे। हम 10 साल इनके साथ लड़ते रहे हैं, और उसके बाद लड़ते रहे। आपकी जिंदगी इतनी तंग कर दी गई कि फिर आपको मुल्क छोड़ना पड़ा। हाँ जी, मुल्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे बेटे को कहते किडनैप कर लेंगे। रात के वक्त हमें कॉलें आती थी, हमें रात दिन सोना नहीं था। मेरे हस्बैंड पे 780 का पर्चा करवा दिया, तो हम घर पे बैठे थे और उन्होंने पर्चा करवा दिया 780 का, दहशतगर्दी का। हमारा जीना उन्होंने दोबर कर दिया था, जिस वजह से हमें मुल्क छोड़ के आना पड़ा। अब भी 1 साल हो गया, मेरा हस्बैंड मेरा बेटा अंदर है, और हम लोग बहुत परेशान है। और मैं सबसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे लिए कुछ सोचा जाए, हमारे लिए दुआ की जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हैं। आपने हिम्मत की, और ये बातें पूरी दुनिया के मसीहों तक, मुसलमान जो दर्द दिल रखते हैं, हुकूमत में जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, काश किसी के दिल में एहसास मसीह जाग जाए। आपके साथ कुछ और भी फैमिलीज हैं, अगर वो बात करना चाहें तो ज़रूर हमारी बात करवाइए। और मैं बताना चाहती हूँ कि 4 साल से मेरी बच्चियाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही, उनकी कुछ भी नहीं हमारे पास। हम लोग बहुत परेशान है, किराया देने की वजह से। मैं आईडीसी से आई, हमारे घर का किराया नहीं था, उन्होंने बाहर निकाल दिया मेरे बच्चों को। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत ही अफसोसनाक, अलमनाक, गमनाक हकाइक हैं। नजरें चुराने वाले नजरें चुरा सकते हैं, जिम्मेदारान
पहलू तय कर सकते हैं। अभी एक और ख़ानदान है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, आप हमारे साथ शरीक हुई। ये भी सुनिए जी, बात करवाइए। हेलो जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, आपके लिए ये शो कर रहे हैं। आप बताइए, आप थाईलैंड में हैं, आपके हालात किस तरह से आप वहाँ पर ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं, बताइए थोड़ा सा मुख्तसर तौर से। भाई सबसे पहले तो मैं आपको सलाम कहती हूँ। भाई मैं ना यहाँ पे ना बहुत मुश्किल गुजारा हमारा हो रहा है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। एक मैं हस्बैंड है तो वो आरडीसी में है। पहले सबसे पहले वो मेनपुरी जेल में रहा इधर। आपका शौहर भी जेल में है? जी। तो बच्चे मेरे शौहर ना आरडीसी जेल च रह के पहले मेनपुरी जेल रहा थे 28 जेल च। तो उनकी ना मेंटली तौर ना थोड़ा ये हो चुके हैं मेंटल। दोबारा बताइए, रुकिए बेबी रुकिए, बहन जी सारे पागल पागल कहते हैं। रुकिए नाजरीन, चर्चेज में बैठे हुए लोग, बड़ी बड़ी वेबसाइट जिन्होंने बना रखी हैं, वो मेरे मुसलमान बहन और भाई जो दर्द दिल रखते हैं, ये सुनिए कि इस बहन का शौहर जेल में गया और उस पर इतना तशद्दुद हुआ है कि वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा है। तो बहन ये बताइए, क्या आपकी कोई मदद के लिए आता है यहाँ पर या नहीं? नहीं भाई, ऐसे कोई मदद लिए साढ़े लिए नहीं आता। मैं क्योंकि बच्चे मैं भी आरडीसी के अंदर मौजूद था उस टाइम, तो मेरे बच्चे बिल्कुल कल्ले से पीछो। तो मेरे बच्चे फिर इन्होंने ना यतीम खाने छड़ दिते। मेरे बच्चे थे 7-8 महीने यतीम खाने रह गए। एक मेरी बेटी सी बड़ी, उन्होंने टेंशन की वजह से बेचारी ने टीबी की शिकायत हो गई। टीबी का इलाज चल रहा, मगर उनका इलाज नहीं सही हो रहा इतने। आपकी बेटी को टीबी हो गई? बंद कर छड़िया बच्ची दी, डॉक्टरी का फर्क नहीं पै रहा। सुनिए दुनिया भर के मसीहों, माँ जेल में, बाप जेल में, बच्चे शेल्टर में, और वहाँ पर जो हालात, एक बेटी को टीबी हो गई और जो अद्वियात देने वाला अदारा है उसने कह दिया है अब कि मज़ीद अद्वियात नहीं दी जाएंगी। बहन आप क्यों अपना मुल्क छोड़कर आए थे? थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो बताइएगा, क्यों आप आए वहाँ से? हाँ भाई, ये चली ऐसा ना थे, लड़ाई वगैरह हुई थी, झगड़ा से मेरे सोरे की बच्ची से बच्ची करा रहे थे हम, क्योंकि सर ना सारा एरिया मुसलमाना का, सिर्फ साड़ी छोटी जी बस्ती किलोमीटर बस्ती छोटी जी हैगी है, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਸਤੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਛਿਲਿਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵੇ। अब मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ, जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं बहुत अच्छे लोग हैं सब कम्युनिटीज़ में, लेकिन सब कम्युनिटीज़ में मसीही हों या मुसलमान हों या हिंदू हों या सिख हों, अच्छे और बुरे लोग हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, और ज़्यादती तो ज़्यादती है। बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमारे साथ ये शेयर किया। और ये यहाँ पर मैं बता दूँ आज तमाम दुनिया के लोगों को कि इससे मुराद ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी का इमेज ख़राब किया जाए, मुल्क की बदनामी हो। और अगर किसी शख्स ने ऐसा इमेज बनाने की कोशिश की तो चूंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ और ख़ादिम भी हूँ, अगर बेनज़ीर मुल्क छोड़े, अगर नवाज शरीफ मुल्क छोड़े, अगर मुशर्रफ साहब मुल्क छोड़े, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर हैं, और बहुत से लोग हैं। लेकिन अगर कोई शिया, अगर कोई सुन्नी, अगर कोई मसीही, अगर कोई अहमदी गरीब शख्स जुल्म और ज्यादतियों का शिकार होकर अगर मुल्क को छोड़े तो यह कहा जाए कि यह मुल्क के लिए बदनामी का बायस है। शर्म आनी चाहिए
ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं, हकाइक से नजरें चुराकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इन लोगों का जो बेबस हैं, बेआवाज हैं, इससे पहले कि इनकी दुआएं अर्श को हिलाकर इस जमीन को हिला दें, जरूर हैं। हाली के शहर को याद रखा जाए, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और वहां पर जो रहने वाले जो असाइलम सीकर्स मसीही हैं, वहां पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के साथ नजायज कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं। उनको भी शर्म आनी चाहिए। मैं ये सख्त अल्फाज आज इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं खुदा के खौफ और हलीमी में ये बात कर रहा हूं, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इकबाल ने ये कहा था। और कभी कभी ये दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि फिर वो अल्फाज भी इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं जो शायद जरूरी हो जाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और भी लोग हैं, नेक्स्ट वीक उनके साथ बात करेंगे। मेरे साथ दोनों मेहमान हैं, अब मैं इनसे पूछता हूं। मोहतरम तारिक साहब, लोग ये कहते हैं कि जी ये लोग अपनी मर्जी से गए हैं, इसलिए ये भुगतें जिस भी हालत में हैं। क्या कहेंगे आप बतौर एक मसीही के, एक रहनुमा के, बाइबल की तालीम के मुताबिक? और पीटर साहब आप भी तैयार रहिए, यही सवाल मैंने आपसे भी पूछना है। तारिक साहब, ये आपने सुन लिया है जी। अब भी अगर कोई बेज़मीर ये कहे कि ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं इसलिए ये भुगते, क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ी ही दिल हिला देने वाली ये बातें हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं कि हमारे लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और मुश्किल हालात में हैं और लोग ऐसी बातें करते हैं। इवन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मुस्लिम बहन भाई, हुकूमत और इवन हमारे क्रिश्चियन लोग जो सरबराह हैं, जो लीडरान हैं और जो पासबान हैं। इवन अमेरिका में मेरी चंद लोगों से बात हुई तो ऐसी बात सुनने में आई कि वो अपनी मर्जी से उन्होंने मुल्क छोड़ा है। लेकिन बात यह है कि अभी जो हमने एक कॉलर जो था, जिसने जो हॉस्पिटल में काम करता था, उससे आपने अभी ये बात सुनी है थोड़ी देर पहले कि किस तरह से वहाँ पर उनके साथ ज्यादती हो रही है और उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो मजहब बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं वहाँ पर ओरिजिनली हैं। अब इन दोनों बहनों ने जो कुछ अपनी दास्तान जो उनके साथ पेश आई, जो कुछ उनके साथ पाकिस्तान में हुआ, उन्होंने बयान की। इसके बाद कौन है जो रहना चाहेगा? कौन है जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हिजरत नहीं करेगा? अगर आप कुरान पाक में देखें, हमने इस्लामियात पढ़ी है, मुस्लिम बहन भाई जानते हैं, हिजरत के लिए तो हर जगह पर कहा गया है जहां से आप हिजरत करके अपने लिए, अपने फ्यूचर को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सको और अपनी सेफ्टी के लिए। इसी तरह जैसे आपने अभी बताया कि जब नवाज शरीफ या बेनज़ीर या मुशर्रफ या जरदारी या अल्ताफ हुसैन वहाँ से मूव हो सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो जब ये लोग जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो मूव होते हैं तो क्या परेशानी है और क्यों उन पे एतराज़ात किए जा रहे हैं? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, खास तौर पर मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से मैं एक बात इनके सामने रखना चाहता हूँ। राह अमल एक हदीस है, किताब है राह अमल, मुसन्निफ उनके हैं मौलाना जलील अहसन नदवी साहब। उनकी हदीस 167, उसका अनवान है गैर मुस्लिम शहरियों के हकूक। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मौद गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करेगा या उसकी हक मारी करेगा या उस से जबरन ले लेगा, तो मैं खुदा की अदालत में मुसलमान के खिलाफ दायर होने वाले मुकदमे में इस गैर मुस्लिम शहरी का वकील बनकर खड़ा होऊंगा। अब मुझे ये बताएं, ये जो तमाम जी तारिक भाई जो आपने किताब का जिक्र किया है, ये मैं किताब आपको दिखा देना चाहता हूं नाजरीन।
یہ راہ عمل ہے مولانا احسن ندوی کی اور یہ زاد راہ ہے. یہ دونوں کتب موجود ہیں اور یہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے جو موصوف نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. جی بات جاری رکھیے. جی میں یہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں 31 کی نائٹ کو ایک واقعہ پیش آیا سکھر میں, جہاں پر کرسچن لوگ اپنے جو وہاں کا علاقہ تھا وہاں پر بیٹھے عبادات کر رہے تھے یا جو کچھ بھی کر رہے تھے 31 کو, تو وہاں پر مسلم کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں اور پولیس کی وردیوں میں آ کے انہوں نے وہاں پر ان کو مارا, ان کو کہا یہ جگہ چھوڑ جاؤ. اور اس کے بعد جب فیس بک پر اس بات پر بحث و تکرار ہوا اور میری گفتگو کافی مسلم بہن بھائیوں سے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پلیز اس کو مذہبی رنگ نہ دے, ڈسکریمنیشن نہ کہیں. اب میں ان تمام بہن بھائیوں سے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہر ایک بات کو ڈسکریمنیشن کی طرف نہ لے کے جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر آپ سمجھ لیں 1% وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. میں سپوز ایک مثال دیتا ہوں, تو 99% یہاں پر جو میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی ہے, وہاں پر حضور پاک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وکیل ہوں گا جب مقدمہ خدا کی عدالت میں دائر ہوگا. تو کیا وہ 99 لوگ, جو بہت سے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں کہ وہ بلڈنگ مافیا ہے یا قبضہ گروپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, کیا خدا جو لوگ مسلم ہیں جو حضور پاک کے فالوور ہیں, کیا وہ یہ فالو نہیں کر سکتے؟ کیا وہ کھڑے ہو کر ان تمام 1% لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ایسا کریں گے تو کوئی بھی پاکستان سے نہیں جائے گا. جو لوگ مجبوراً لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کو چینج کریں, یا ان سے تشدد کرتے ہیں, یا ان کے بزنسز کو چھیننا چاہتے ہیں, یا ان کی پراپرٹیوں کو چھیننا چاہتے ہیں, یہاں پہ میں نے یہی پڑھا جو جبراً ان سے کچھ لے لیں یا ان کی حق ماری کریں, تو حضور پاک جو ہیں وہ وکیل بن کر وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کیا تمام مسلمان بہن بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ صرف بحث کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے؟ تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں, ہمارے کرسچن, میں ان سے بھی گزارش کروں گا, پلیز خدا را آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, ان لوگوں کے لیے دعا کریں. اور اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں یورپ میں, امریکہ میں. بہت شکریہ. اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. پیٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پیٹر صاحب آپ نے بھی پیٹر صاحب آپ نے بھی یہ افسوسناک, اندوناک, دل ہلا دینے والی باتیں سنی ہیں, کیا کہیں گے؟ پاسٹر جی, آپ بھی تھائی لینڈ سے ہو کے آئے ہیں, میں بھی تھائی لینڈ سے ہو کے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے بہن بھائیوں نے بتایا ہے اس سے بھی زیادہ برس حالات ہے وہاں پہ, اور جتنی مشکلات حالات میں ہمارے بہن بھائی وہاں زندگی گزار رہے ہیں میں نے دنیا میں کہیں ایسا نہیں دیکھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو حکومت عالم پہ کوئی اس بات توجہ دی جا رہی ہے, نہ ہی ہماری قوم میں اس بات کو کوئی سیریس لیا جا رہا ہے. وہ بیچارے دن رات پریشانیوں میں, دکھوں میں, وہ انہوں نے اپنے آپ کو جیلوں کے گھروں کے اندر جیل کی طرح بند کیا ہوا ہے. وہ باہر نہیں نکل سکتے, کچھ کام نہیں کر سکتے, علاج معالجہ نہیں ہوتا. کتنے ہمارے بہن بھائی جیل کے اندر, آئی ڈی سی کے اندر مر گئے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے ان باتوں کا. لیکن اس کے لیے ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے قوم, ایز اے ہیومن رائٹ, ان کا تعلق کسی بھی قوم مذہب سے ہو, ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے, حکومتوں کو آگے آنا چاہیے. اگر ہم سیریا سے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں تو کیا پاکستان کے مسیحی یا وہاں جو تھائی لینڈ میں ریفیوجیز ہیں, ملیشیا میں ہیں, کیا ان کی حالات ان سے کوئی زیادہ خراب نہیں ہے؟ وہ زیادہ مستحق ہیں ان چیزوں کے. تو میں یہ آپ کے ریڈیو کے توسط سے, آپ کے ٹی وی کے توسط سے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, حکومت اعلیٰ کو, امریکہ کو, کینیڈا کو, پاکستان کو اور دنیا کی تمام حکومتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, یہ
درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ان کے لیے سوچا جائے. ان کے حالات وہاں بہت خراب ہیں, ان کو وہاں مدد مالی طور پر دیا جائے تاکہ یہ اپنا حلال معاوضہ کرا سکیں, اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ کر سکیں. پلس تھائی لینڈ گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ ان کو جب تک ان کا کوئی سد باب نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کو آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنی دی جائے. ان کو جاب کے موقع میسر کیے جائیں تاکہ یہ وہاں پہ پاکستان سے بھی زیادہ وسط زندگی نہ گزاریں. بہت شکریہ پیٹر صاحب, آپ نے یہ باتیں کی ہیں. اگلے ہفتے ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. بائبل مقدس جب لوگ ایسی حالتوں میں سے گزرتے ہیں, بائبل مقدس کی تعلیم اس کے بارے میں کیا ہے. لوگ چاہے کچھ بھی سوچیں, دانشور اور رہنما کچھ بھی کہیں, بائبل ایسی صورتحال میں سے جب لوگ گزرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا رویہ, ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیم دیتی ہے. اور دیگر جو سوالات ہیں توبہ ٹیکسنگ کے حوالے سے اور اسائلم سیکرز کے حوالے سے, اس پر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور درخواست یہ ہے کہ بائبل کی تعلیم جس پر مسیحوں کا ایمان ہے اور ایک حدیث ہمارے مسلمان بہن بھائی جس کو سنت کہتے ہیں رکھی گئی. اب ہم ان تمام باتوں کو سنیں گے, نظر انداز کریں گے, اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہو کر بھول جائیں گے, یا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہے ساری خلقت کنبہ خدا کا, جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. بائبل کی باتیں آپ تک پہنچی, حدیث آپ تک پہنچی, مختلف پہلوؤں سے ہم نے بات کی. اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور میری درخواست ہوگی جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے, آپ کو دعوت ہے, آپ نیکسٹ شو میں کال کیجئے, اپنے خیالات کا اظہار کیجئے, دعا کیجئے. عملی طور پر میرے مسلمان بہن بھائی جو پوری دنیا میں ہیں, مسیحی اور دیگر اقوام کے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, آئیے ان کو جو اسائلم سیکرز ہیں پوری دنیا میں مختلف مذاہب کے, اگر آپ ان کو اپنے مذہب کا حصہ نہیں بھی سمجھتے تو خدا را کنبہ خدا کا ہی سمجھ لیجئے, ان کو بھی انسان ہی سمجھ کر ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. چرچز کے اندر بے شمار دولت, مندروں کے اندر بے شمار دولت, گردواروں میں بے شمار دولت, دیگر تنظیموں کے پاس بے شمار دولت, بڑی بڑی ڈائسسز کے پاس بے شمار دولت. کس کے لیے, کس کے نام پر؟ یہ سارے عہدے کلیسیا کی وجہ سے ہیں, عہدوں کی وجہ سے, کلیسیا نہیں. اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ کا میزبان, آپ کی دعاؤں کا میں قرضدار رہتا ہوں. دعا کیجیے گا, خداوند آپ کو بہت برکت دے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دانیال.